Good morning, student. Today we are going to discuss the chapter Nationalism in India, NCERT book, the history chapter, the history subject, and in the nationalism in India, we had already discussed large amount of things. Today our topic is limits of civil disobedience movement. What were the limits? What are the drawback of civil disobedience movement? We are going to study in this topic in this lecture. Beta, before that, I want to remind you that what was the thing before that? Before that, the limits of civil disobedience movement is a part of civil disobedience movement, which was started by Mahatma Gandhi in the year 1930 and was relaunched by Mahatma Gandhi in the year 1932. But in the year 1932, when Mahatma Gandhi relaunched the civil disobedience movement, it was not so effective. Many social groups, they were not participating in the movement as enthusiastically as they had participated in the past. So by this there were certain limits. The limits which we are going to study, there are two limits. At first we will study about the participation of Dalit community in the civil disobedience movement, and secondly we will study the participation of Muslim community in the civil disobedience movement. Participation of Muslim community we will study in the next lecture. So when we go through the limits of civil disobedience movement, the first is Dalit. If we studied it, then we find out that Mahatma Gandhi was never in favor of the word untouchability. But in the society of India, Dalits, they face large amount of problem. Especially in the society, they were not get dignified. Their role in the society was not as important as the importance of the other one. So the Dalit community, they feel that they were elite, they were marginalized from the society. So Mahatma Gandhi, he made quite clear, and he also announced that India will never get Swaraj for hundreds of years if the untouchability was not being obliged. If the word untouchability will be removed from society, if the lower caste people get dignified, obliged, then India will get the independence, or India will get the Swaraj. If the society of people, the Indian society were not going to do so, India will never get freedom or Swaraj. Nevertheless, they fight for hundreds of years. He organized Satyagraha. He also organized Satyagraha to get the participation of Dalit community in the temples as well as the public places, tanks, road, school for Dalit. Means in the society of India, people were the society was totally been divided, and even the Dalit community, where they were not given permission to enter in the temple, to touch enter in the temple, to touch the holy books, go in the public places, take water from the tanks, even walk in the road. So Mahatma Gandhi said that if our society is so much divided, then why we are fighting for the independence? We never get the independence until and unless our society should be organized. जब तक आपका समाज जो है एकजुट नहीं होगा, तब तक जो है हमें इंडिपेंडेंस पाना, स्वराज पाना बड़ा मुश्किल है. इसलिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह मूवमेंट भी स्टार्ट किया था, जिससे कि आपका जो दलित कम्युनिटीज़ हैं उनको जो है बार बार महात्मा गांधी ने उनके लिए मूवमेंट ऑर्गेनाइज किया ना. ही आल्सो फाइट दैट कि दे विल गेट परमिशन टू एंटर इन द टेम्पल एंड आल्सो इन द अदर पब्लिक प्लेसेस. ही आल्सो कॉल्ड दलित एज हरिजन, द सन ऑफ गॉड, टू डिग्निफाइड देयर वर्क. टू डिग्निफाइड द वर्क, महात्मा गांधी इवन क्लीन हिज आश्रम हिमसेल्फ. Even he cleaned his ashram in himself and asked the people to understand that do your work yourself, never depend on the other. No work is never be the work of shame.
ना, नो वर्क इज शेम इफ़ यू आर डूइंग योर ओन वर्क देन ट्राई टू ग्लोरीफाई इट। अपने काम को करने में कोई दिक्कत नहीं है, अपना काम को उन्होंने हरिजनों का भी काम किया, काम करके वो एक तरीके से ही इवन क्लीन द टॉयलेट्स एंड ग्लोरीफाई द वर्क्स ऑफ हरिजन और द भंगी, सो दैट पीपल अंडरस्टैंड दैट कि इफ़ महात्मा गांधी डूइंग ऑल दीज थिंग्स सो वाई कांट वी। इस चीज़ की शिक्षा देने के लिए महात्मा गांधी हमेशा तत्पर थे। लेकिन समाज में क्या था, ही आस्क्ड द अपर कास्ट हिंदूज टू गिव अप द इनह्यूमन प्रैक्टिसेस ऑफ अनटचेबिलिटीज। ही इवन आस्क्ड द अपर कास्ट हिंदूज़ को भी उन्होंने कहा था कि आप जो है हिंदूज़ के जो अपर कास्ट के लोग हैं उनको भी कहा था कि आप जो है हमेशा उनको रेस्पेक्ट दे दिए, सो दैट दे विल बी द पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड दे विल स्ट्रगल फॉर द कंट्री। लेकिन महात्मा गांधी के आह्वान के बावजूद भी समाज में आपके जो दलित कम्युनिटी थे उनको वो इज्जत नहीं मिली जिसके वो लायक थे ना। फॉर दैट उनके लिए एक मसीहा सामने आया, वेल नोन पीपल, यू ऑल नो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ही कम फॉरवर्ड एंड his idea was that कि the untouchabilities or the Dalit class people will get dignity only when they will come in the power, political power. If they get the political power then the conditions will be should be increased। इस विचारधारा को मानने वाले थे आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और इसके लिए उन्होंने एक आपका 1930 में उन्होंने एक आपका ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने दलित कम्युनिटीज़ को इकट्ठा किया, ऑर्गेनाइज किया और बनाया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। दैट डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन इज़ नाउ अ डेज नोन एज ST/SCs। लेकिन पहले उसकी जो आधारशिला थी उसको आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने रखा था, और डिप्रेस्ड क्लास को एक सेपरेट इलेक्टोरेट का डिमांड उन्होंने रखा इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ना। इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस विच वॉज हैपन इन लंदन इन द ईयर 1930, ही हैड डिमांडेड दैट कि द पीपल ऑफ द दलित पीपल विल गेट सेपरेट इलेक्टेड। सेपरेट इलेक्टेड मीन्स दे विल सेलेक्ट देयर ओन लीडर फ्रॉम देयर कम्युनिटी, फ्रॉम देयर कास्ट, है ना। अपने कास्ट से, अपने कम्युनिटी से जब कोई अपना लीडर को चुने तो उसको हम सेपरेट इलेक्टेड बोलते हैं। तो फिर इसका डिमांड आपका मिस्टर अम्बेडकर जी ने रखा और कहा कि दलित जो है सेपरेट इलेक्टोरेट उनको मिलना चाहिए, एंड ब्रिटिशर्स दे एक्सेप्टेड इट। व्हेन आपका मिस्टर अम्बेडकर जी हैड पुट द डिमांड इन फ्रंट ऑफ द ब्रिटिश, देन ब्रिटिशर्स एक्सेप्ट इट। But when Mahatma Gandhi knows that कि Ambedkar ji is going to put a demand in front of the Britishers, so he was very much sad, because in his mind he never believed that कि दलित is different, है ना। बहुत धक्का लगा उनको, क्योंकि उनके दिमाग में कभी नहीं था कि दलित जो हैं अलग हैं और उनको जो है अलग इलेक्टोरेट चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि महात्मा गांधी ने अम्बेडकर जी के इस डिमांड को रूल्ड आउट किया, मानने से मना कर दिया। क्यों मना किया मानने से? अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी देयर वाज द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, देयर वाज द टाइम ऑफ स्ट्रगल, फ्रीडम स्ट्रगल, और पूरे देश को जोड़ने का काम किया जा रहा था। बट इस जोड़ने के काम में अम्बेडकर जी के इस हरकत से कहीं ना कहीं महात्मा गांधी को ये लगा कि देश में जो आपका नेशनल डेवलपमेंट, नेशनल मूवमेंट का जो मकसद है, दैट शुड बी आपका दैट शुड बी स्टॉप और दैट शुड बी हिंडर्ड, है ना, रुकावट होगी, रुकेगा वो। इसके लिए महात्मा गांधी ने अम्बेडकर जी को के इस डिमांड से वो काफ़ी हद तक आघात हुए, और महात्मा गांधी ने ऑन टू डेथ आमरण अनशन पे चले गए। आमरण अनशन पे जाने का कारण था कि आप अम्बेडकर जी इस डिमांड को क्या करें, वापस लें। तो एट लास्ट अम्बेडकर जी और मिस्टर आपका Mahatma Gandhi demand they had put together in Pune, and in that the Ambedkar ji had take out the demand of separate electorate, है ना। He thought that कि share in the political power would help in the upliftment। अम्बेडकर जी ने यही सोचा था ना कि अगर हम पॉलिटिकल पावर मिलता है दलितों को तो उनके अपलिफ्टमेंट में उनकी हेल्प मिलेगी, ठीक है। गांधी जी अपोज सेपरेट इलेक्टोरेट ना, सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए महात्मा गांधी अपोज कर रहे थे, लेकिन ही थॉट दैट कि इट वुड क्रिएट आपका डिसयूनिटी। क्यों इसके अपोज में थे? क्योंकि इससे देश में क्या हो जाएगा, डिसयूनिटी आ सकती है,
क्या बोलते हैं, अनेक देश टूट सकता है, बट सकता है, इसलिए महात्मा गांधी इसके खिलाफ थे। सो दे क्लैश इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, है ना। सो उसके कारण क्या हुआ, महात्मा गांधी भी उस तरफ अपना गुस्से में थे, अम्बेडकर जी भी अपनी बात को रख रहे थे। सो बोथ द पीपल, महात्मा गांधी एंड बी आर अम्बेडकर, दे गैदर्ड इन पूना इन द ईयर 1932, और एक ट्रीटी हुई, एक साइन हुआ जिसको हम लोग इतिहास जानता है एज ए पूना पैक्ट वाज साइंड। और उस पूना पैक्ट में आपके बी आर अम्बेडकर ने सेपरेट इलेक्टोरेट का जो डिमांड कर रहे थे उसको उन्होंने गिव अप कर दिया, छोड़ दिया। लेकिन उनके छोड़ने उन्होंने इसको छोड़ा, लेकिन महात्मा गांधी ने उनको एक नया चीज़ दिया कि आप जो है सेपरेट इलेक्टोरेट आपको हम नहीं देते हैं, लेकिन रिजर्व कंस्टिट्यूएंसीज देते हैं, है ना। रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी मीन इन पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी द कैंडिडेट फ्रॉम डिप्रेस्ड क्लास विल कंटेस्ट इलेक्शन, ना। सेपरेट इलेक्टोरेट एंड रिजर्व कंस्टिट्यूएंसीज आर डिफरेंट थिंग, है ना। तो इन आपका the demand of reserve constituency was given by Mahatma Gandhi to Ambedkar ji, and Ambedkar ji has accepted it. Gandhi ji brought an end to the fast when आपका on to that जो आपका महात्मा गांधी ने किया था पूना पैक्ट के कारण जो है उसको महात्मा गांधी ने ख़त्म किया। He accepted the demand for the reserve constituencies of seat for Dalit, है ना, in the legislature assembly. And Ambedkar ji agreed to give up the demand for the separate electorate, and by getting the reserve demand of by getting the permission of रिजर्व कंस्टिट्यूएंसीज, आपके अम्बेडकर जी ने जो सेपरेट इलेक्टोरेट का डिमांड था उसको उन्होंने गिव अप कर दिया, ठीक है। और उसके बाद महात्मा गांधी ने ये भी कहा कि आपका दलित के लिए काम किया जाएगा इन फ्यूचर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दलित इन द एजुकेशनल डेवलपमेंट एज वेल एज द इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में उनके लिए काम किया जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो घटना थी, इस घटना से एक चीज़ साफ होती है कि जो दलित का पार्टिसिपेशन था इन द नेशनल मूवमेंट वाज वेरी आपका दलित फील वेरी अनईजी टू पार्टिसिपेट इन द नेशनल मूवमेंट बिकॉज दे ऑलवेज थॉट दैट कि दे वर ह्यूमिलिएटेड, ना, उनका हमेशा उपेक्षा किया जा रहा है। तो जो भी मूवमेंट आपका हुआ था इन इंडिया, उस मूवमेंट में दलित का जो पार्टिसिपेशन था दैट वाज वेरी लिमिटेड पार्टिसिपेशन, है ना। एंड द रीजन बिहाइंड द लिमिटेड पार्टिसिपेशन वाज दैट कि दे वर नॉट ट्रीटेड गुड इन द सोसाइटीज, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपका अम्बेडकर जी हैड स्टार्टेड अम्बेडकर जी हैड रेज द डिमांड, ही ऑर्गेनाइज द पीपल and organized a depressed class society. He put the demand for the separate electorate. Mahatma Gandhi and Ambedkar ji was sit in the Pune, and after that the demand of separate electorate was give up by Ambedkar जी, और उसके बदले आपका जो दूसरा डिमांड आपका महात्मा गांधी ने उनको दिया दैट वाज द रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी, और इस डिमांड को उन्होंने एक्सेप्ट भी किया। लेकिन हम इस चीज़ से ये कह सकते हैं कि आपका जो पार्टिसिपेशन था दलित का इन द नेशनल मूवमेंट वाज वेरी आपका निग्लिजिबल, है ना, वाज वेरी निग्लिजिबल। उनका इतना ज़ोर शोर से योगदान नेशनल मूवमेंट में नहीं था। ओके, सो दिस वाज द टॉपिक, एंड इन द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और व्हेन द क्वेश्चन कम इन 3 marks एज वेल एज इन द 5 marks also. If the question will come in the 5 marks, तो ऐसे आ सकता है कि what was the limitation of civil disobedient movement in for the दलित, इसके बारे में आ सकता है। और दिस पूना पैक्ट अक्सर पूछा जाता है कि when पूना पैक्ट was signed, between whom and whom पूना पैक्ट was signed, what was the objective of पूना पैक्ट, जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। देन व्हाट वाज द आपका who give the name of हरिजन, है ना, who call untouchable as हरिजन, ऐसे भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। इसके अलावा who organized the depressed class, who founded the depressed class association in India, या आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि who are बी आर अम्बेडकर, है ना, and what was his demand, पूना पैक्ट, why Mahatma Gandhi went on to death. These are the different type of questions which will come in the examination from this topic. Okay, so in the next topic we will come with the other limitation made by the Muslim. Okay, till then, thank you.